children, today we will learn how to examine cranial nerve 3rd, 4th and 6th. These are the mixed nerve which is commonly asked in exam. It is very important according to exam point of view. They are mixed nerve. They supply the extraocular muscles so that it can rotate the eyeball, and it also brings the sensation, proprioception in eye muscles. तो हम देखें muscles supplied by the 3rd cranial nerve, that is oculomotor, and what are the action of these muscles and what is the effect of paralysis of this. तो हम देखें तो ciliary muscles का काम होता है accommodation. तो paralysis of 3rd cranial nerve, paralysis of this muscle causes loss of accommodation. Then iris and especially sphincter pupillae muscle, it constricts the pupil. So paralysis of this causes pupil dilated. Then levator palpebrae superioris. Action of this is elevator of upper eyelid. It elevates the upper eyelid. So paralysis of this causes ptosis. Ptosis is drooping of upper eyelid. Then extraocular muscles. There are 6 extraocular muscles, particularly 4 extraocular muscles supplied by the 3rd cranial nerve, that is medial rectus, inferior oblique, superior rectus and inferior rectus. Now come to the action of these extraocular muscles. यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 आईज यहाँ पे हैं. मीडियल रेक्टस, ये नेजल साइड है. मीडियल रेक्टस, action of medial rectus is adduction. What is adduction? Adduction is the horizontal movement of the eyeball, horizontal inward movement of the eyeball. तो ये medial rectus का काम होता है horizontal inward movement कराती है ये nasal side में, इसको हम adduction कहते हैं. तो medial rectus का काम होता है medially movement of the eyeball, that is adduction. Then superior rectus का काम होता है elevation of the eyeball. Then inferior rectus का काम होता है depression. तो medial rectus का काम था horizontal movement inward करा रहा था, that is adduction. Then superior rectus का vertical movement करा रहे हैं, upward movement है, that is elevation. downward movement है, that is depression. तो superior rectus का काम होता है elevation of the eyeball, inferior rectus का काम होता है depression of the eyeball. Then inferior oblique is also supplied by the 3rd cranial nerve. Inferior oblique का काम होता है upward movement लेकिन outward movement. तो inferior oblique का काम होता है upward movement and outward and तो ये जो सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस मसल्स थी, इनका काम जैसे सुपीरियर रेक्टस है, इसका काम एलिवेशन के साथ एडक्शन भी था, एलिवेशन विथ एडक्शन. मीडियल रेक्टस का काम था एडक्शन. इंफीरियर रेक्टस का काम है डिप्रेशन विथ एडक्शन. लेकिन इंफीरियर ऑब्लिक का काम है अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब एडक्शन के साथ ही अपवर्ड मूवमेंट करा रहे हैं. फिर सुपीरियर ऑब्लिक मसल का हम देखें या लेटरल रेक्टस का मसल का काम देखें हम, तो सुपीरियर ऑब्लिक SO4 से हम इसको लर्न करते हैं. सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय द 4th cranial nerve, that is trochlea, and lateral rectus is supplied by the 6th cranial nerve. तो सुपीरियर ऑब्लिक का काम होता है डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट कराता है सुपीरियर ऑब्लिक, और लेटरल रेक्टस का काम होता है एबडक्शन. अब हम देखते हैं कि जो दोनों ही आईज होती हैं उनमें जो मूवमेंट होते हैं वो सिमेट्रिकल मूवमेंट होता है, सो दैट visual axis of both the eye meet at the same fixation point, that is known as the conjugate eye movement. तो इनमें conjugate eye movement होता है. तो यदि हम इनका एक्शन हमने देखा, यदि हम देखें कि यदि 3rd cranial nerve का पैरालिसिस होता है तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के मूवमेंट में क्या एक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है. तो इंडिविजुअली कोई मसल्स का अफेक्ट नहीं होती है, सारी ही मसल्स एक साथ अफेक्ट होती हैं जनरली. तो इससे लेटरल डेविएशन ऑफ द आई होता है. यदि सारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स पैरालाइज होती हैं तो इससे हमें लेटरल डेविएशन ऑफ द आई मिलता है. क्यों? कि अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल्स, क्योंकि सारी मसल्स जो है वो एडक्शन करा रही है. सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस सारी एडक्शन के साथ ही एलिवेशन डिप्रेशन करा रही थी. तो इनका लेटरल रेक्टस का काम था एबडक्शन. अब यदि ये सारी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी तो लेटरल रेक्टस का काम अनअपोज्ड रह जाएगा. तो लेटरल डेविएशन ऑफ द आई मिलता है हमको 3rd cranial nerve के
पैरालिसिस में विथ यदि हम देखें सिर्फ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की बात करें तो। देन यदि हम क्रेनियल नर्व फोर्थ के पैरालिसिस की बात करें या अफेक्शन की बात करें कि अफेक्ट हो रही है फोर्थ क्रेनियल नर्व, तो इसमें हमको सुपीरियर ऑब्लिक का काम होता है डाउनवर्ड और आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट कराता है ये सुपीरियर ऑब्लिक। मतलब ये जो थे वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट, ये था हॉरिजॉन्टल इनवर्ड मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड मूवमेंट। लेकिन इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है रोटेटरी मूवमेंट कराती है। तो इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक जो है रोटेशन कराता है, इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन। तो इनवर्ड रोटेशन टूवर्ड्स द नोज होता है एंड आउटवर्ड रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो टूवर्ड्स टेम्पोरल साइड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल होता है। तो सुपीरियर ऑब्लिक का यदि पैरालिसिस हो जाता है तो डिप्लोपिया होता है, क्योंकि कंजुगेट आई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। विजुअल फिक्सेशन पॉइंट जो है पे दोनों आइज का एक साथ नहीं बन पाता है, फिक्सेशन नहीं हो पाता। तो सुपीरियर ऑब्लिक SO4 मतलब सुपीरियर ऑब्लिक यदि फोर्थ क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है या लैटरल रेक्टस का पैरालिसिस है, मतलब सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का, दोनों ही कंडीशन में हमको डिप्लोपिया मिलता है, डबल विजन मूवमेंट मिलता है। So that is about the movement of the extraocular muscles. अब हम करते हैं आई बॉल के मूवमेंट को टेस्ट करते हैं। आई बॉल मूवमेंट की टेस्ट करने के लिए इंडेक्स एग्जामिनर को अपनी इंडेक्स फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नोज ऑफ द सब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रखनी है और सब्जेक्ट को कहना है कि बिना अपने हेड को मूवमेंट किए हुए एग्जामिनर की इंडेक्स फिंगर के मूवमेंट को देखेगा, उसको ट्रेस करेगा। और इस टेस्ट को करते वक्त जो एग्जामिनर का आई का लेवल हो एट द सेम लेवल ऑफ द सब्जेक्ट आई होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपना हेड मूव नहीं करना है और ये फिंगर को आपको देखना है। सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स फिंगर को लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जाते हैं। जब हम लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो लेफ़्ट आई की लेटरल रेक्टस और राइट आई की मीडियल रेक्टस का मूवमेंट देखते हैं। फिर हम अपर डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हम लेफ़्ट आई की सुपीरियर रेक्टस और राइट आई की इंफीरियर ऑब्लिक का मूवमेंट देखते हैं। फिर हम डाउनवर्ड ले जाते हैं तो लेफ्ट आई की इंफीरियर रेक्टस और राइट आई की सुपीरियर ऑब्लिक को देखते हैं। फिर हम वापस लाते हुए उसको सेंटर पॉइंट में लाते हैं, फिर राइट लेटरल ले जाते हैं तो राइट आई की लेटरल रेक्टस और लेफ्ट आई की मीडियल रेक्टस का मूवमेंट देखते हैं। फिर हम अपवर्ड ले जाते हैं तो हम राइट आई की सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई की इंफीरियर ऑब्लिक का मूवमेंट देखते हैं। फिर हम डाउनवर्ड ले जाते हैं तो राइट आई की इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई की सुपीरियर ऑब्लिक का मूवमेंट देखते हैं। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हमें अपने टॉर्च को ऑन करना है और सब्जेक्ट की आई में हमको लेटरल साइड से आई में लाइट डालनी होती है। कभी भी लाइट हमको फ्रंट साइड से लाइट नहीं डालनी होती है। और डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स के लिए जिस साइड में हम लाइट डालते हैं उसी साइड में उसी आई में हमको प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन देखना होता है। देन इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में हमको एक कार्डबोर्ड हमें पेशेंट की नोज़ के सामने लगाना होता है। फिर हम जिस आई में लाइट डालते हैं उसके अपोजिट साइड में हमको प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन देखना होता है। अब हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक लेंस का कर्वेचर, एंटीरियर कर्वेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन होता है और मीडियल साइड रोटेशन होता है आई बॉल का। तो हम इसमें 2 कंपोनेंट यहाँ पे चेक करने होते हैं। तो हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट को कहते हैं पहले एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो देखता रहेगा, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा और एग्जामिनर को अपना इंडेक्स फिंगर जो है उसके नोज़ के पास रखना है। फिर उसको कहना है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता रहे और फिर सडनली उसको कहना है कि वो आपकी इंडेक्स फिंगर पे फोकस करे। जब वो आपकी इंडेक्स फिंगर पे फोकस करेगा आपको उसी टाइम पे उसकी प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन देखना है और मीडियल रोटेशन ऑफ द आई बॉल को नोटिस करना है। तो हम देखते हैं, आप दूर वहाँ सीधा देखिए, सीधा देखिए, अब इस फिंगर की तरफ देखिए, दूर देखिए, दूर देखिए, वहाँ इस फिंगर की तरफ देखिए, दूर देखिए, वहाँ फोकस करिए, दूर देखिए, बिल्कुल दूर। अब यहाँ इस फिंगर पर देखिए, दूर देखिए, इस फिंगर पे देखिए, दूर देखिए, इस फिंगर पे देखिए,